مجھے سب سے زیادہ تپ چڑھی ہوئی ہے. میں اس وقت اگر میرا بچہ جو ہے عثمان وہ ڈی ایس این جی پہ اتنی دور نہ کھڑا ہوتا صبح سے بیچارہ خبریں دے دے کر، تو میں نے اس وقت دھاڑے مار مار کے رونا تھا. کیا ہوا کہ آپ کی حکومت کے اندر بحث یہ ہو رہی ہے کہ یہ جو بارشیں ہوئی ہیں اس کو کلاؤڈ برسٹ کہا جائے یا ہیوی رینز کہا جائے. کلاؤڈ برسٹ ہوا ہے تو کلاؤڈ برسٹ کہا جائے گا نا بھائی میں آپ کو خبر بتا رہا ہوں جو میری نہیں ہے، یہ انالیسس کر کے باقاعدہ ڈاؤن میں دیا ہے اور باقاعدہ لوگوں کو کوٹ کیا گیا ہے. ایک فرقہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہیوی رینز ہیں، فرقہ ایک کہہ رہا ہے وہ یہی دنیا. اور کیا ہوا؟ یار دیکھیں مقصد یہ کہ انسانوں کی تباہی پر توجہ دینے کی بجائے یہ توجہ دینے کی بجائے کیا لوگوں کو فور بارن کیا گیا یا نہیں. سب سے پہلا سوال عثمان مغل سے یہ پوچھتے ہیں. عثمان بھائی بہت شکریہ، ہمیں پتہ ہے آپ صبح سے لگے ہوئے ہو. مجھے یہ بات بتاؤ، آپ کی یہاں مقامی لوگوں سے بہت طویل گفتگو ہوئی ہوگی. آپ کو بہت پرانے بزرگوں نے کسی نے بھی یہ کہا کہ انہوں نے ایسا فینومینا پہلے کبھی بنیر میں دیکھا ہے؟ پہلے تو یہ بات بتاؤ. جی بہت شکریہ. کیونکہ بنیر کا جو علاقہ ہے اس کے اندر بڑے پیمانے پر سیلاب نے جو ہے وہ تباہی کی ہے، اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس موضوع پر مجھے لب کشائی کا جو ہے وہ موقع دیا. اور چونکہ آج جب اسلام آباد سے میں بنیر کے لیے روانہ ہوا تو میرے ذہن میں ایک نقشہ تھا کہ اتنے بڑے پیمانے پر جو سیلاب نے تباہی کی ہوگی وہاں پر کیا مناظر ہوں گے. اور یہی سوچتے میں بنیر پہنچا، اور بنیر پہنچ کر میں نے وہی کچھ دیکھا جو میں منظر کشی سے پہلے کر چکا تھا، جو سکیچ میرے دماغ میں بن چکا تھا. میں نے وہاں جا کر دیکھا کہ زندگی جو ہے وہ مفلوج ہو کر رہ چکی ہے، اور ایسا لگا کہ زندگی رک چکی ہے. فضا کافی زیادہ سوگوار تھی کیونکہ بنیر کے 5 علاقے تھے جن میں پیر بابا کا علاقہ تھا، اس کے بعد بشنوئی تھا، اس کے بعد ملک پور تھا، قادر کا علاقہ تھا، قادر نگر کا علاقہ تھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ جو سب سے زیادہ جہاں پر تباہی ہوئی ہے وہ ہے باچا کلے کا علاقہ، جہاں پر میں نے دیکھا کہ بڑی تعداد میں جو گھر تھے وہ تباہ ہو چکے تھے. اور اس کے بعد جو ملیکہ جو دربار تھا وہ تباہ ہو چکا تھا. وہاں پہ رابطہ سڑکیں جو وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی، پل ٹوٹ چکے تھے، کھمبے جو ہے وہ اکھڑ چکے تھے، اور بڑے بڑے جو درخت تھے وہ لوگوں کے گھروں پر جو وہ پڑے ہوئے تھے. اور اس طرح لگ رہا تھا کہ بہت بڑا سیلابی ریلا یہاں سے گزرا ہے. لیکن جب دیکھتے ہی دیکھتے 11 کے قریب میتیں جو ہے انہیں ہسپتال منتقل کیا گیا، اور اس سے پہلے میں نے تمام جو تفصیلات وہاں سے اکٹھی کی تھی. آج تک جو ہے وہ 15 اگست سے لے کر آج تک 145 لاشیں جو ہیں انہیں ہسپتال منتقل کیا جا چکا ہے. صرف آج کے دن میں 11 لاشیں جو ہیں انہیں باچا کلائی ہسپتال کے اندر جو ہے وہ منتقل کیا گیا ہے. اور یہ وہ لاشیں ہیں جو اس برساتی ریلے کے اندر جو خوفناک موجیں تھیں ان کی نظر ہوئی، اور زیادہ تر لاشیں ایسی تھیں جن کے سروں پر جو وہ گہرے زخم موجود تھے. یہ جو آپ بتا رہے ہیں ڈیڈ باڈیز کا نمبر، یہ کیا وہاں تلاش ہو رہی ہے اور یہ نمبر بڑھتا چلا جا رہا ہے؟ اور جو لاپتہ لوگوں کا ہے اس کا نمبر پتہ لگا ہے کہ کتنے لوگ لاپتہ ہوئے ہیں اس سیلابی اور طوفانی آفت کی وجہ سے؟ جی دیکھیں 12 گھنٹے پہلے جو فگر تھا وہ 131 لاشیں جو ہیں انہیں اسپتال منتقل کیا گیا تھا، اور مزید 11 لاشیں آج منتقل کی گئی ہیں جن میں کم سن بچے اور خواتین جو ہے وہ بھی شامل ہیں. اور اس طرح 145 کے قریب یہ فگر چلا گیا ہے. اور میرے ذرائع کے مطابق جو ہے وہ 150 سے 200 افراد جو ہیں وہ اب بھی مختلف مقامات پر جو ہے وہ پھنسے ہوئے ہیں، جنہیں نکالنے کا سلسلہ جو شروع کیا گیا ہے. کیونکہ یہ برساتی ریلا جو ہے وہ اتنا خوفناک تھا کہ 10 سے 12 فٹ تک جو ریت تھی، جو مٹی تھی، اس کے نیچے یہ لوگ جو ہے وہ دبے ہوئے ہیں، اور ان کو تلاش کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے. ہیوی مشینری جو ہے وہ 15 اگست کے بعد آج یہاں پر پہنچائی گئی ہے. اس سے پہلے تمام عثمان ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ غالباً ہمارے این ڈی اے ایم اے والوں کے پاس یا جو فوجی دستے وہاں پہ ریسکیو آپریشن کے لیے موجود ہیں تو اسپیشلائز قسم کے دستوں کے پاس غالباً اس طرح کا کوئی اکوپمنٹ موجود ہے کہ جس کے ذریعے زمین کے نیچے دبے یا بولڈرز کے نیچے آئے لوگوں کو، دور دراز لوگوں کا کسی طرح کو پتہ لگایا جا سکتا ہے. آپ کو وہاں فیلڈ میں موجود ہوتے ہوئے ایسی ایفرٹس ابھی دکھائی دی یا لوگ گیو اپ کر چکے ہیں کہ نہیں لوگوں کو نہیں ڈھونڈا جا سکے گا؟
जी देखें, चूंकि खैबर पख्तूनख्वा का ये इलाका है जहां पर मजमूई तौर पर 15 अगस्त से लेकर अब तक जो वो 350 से जायद अमवात रिपोर्ट हो चुकी हैं। सिर्फ 5 ये इलाकों का मैंने आपको बताया कि जहां से अब तक 145 अमवात जो वो रिपोर्ट हुई हैं। सहूलियात का फुकदान देखा गया है, राब्ता सड़कें जो वो टूट फूट का शिकार है, पुल जो है वो बरसाती रेले में बह चुके हैं, हैवी मशीनरी वहां तक नहीं पहुंच सकती, लेकिन जो सोशल वर्कर्स हैं उनकी खिदमात हासिल की गई हैं। उन्हें मोटर बाइक्स के ऊपर बिठाकर मुतासरा इलाकों के अंदर ले जाया गया है और हमने देखा कि ज्यादातर जो मुकामी अफराद हैं वो अपनी मदद आप के तहत जो वो अमदादी सरगर्मियों के अंदर जो वो शरीक थे और उन्हीं की जानिब से मुख्तलिफ NGOs के इश्तराक से इस मुतासरा इलाकों के जो मुतासरीन थे उनके लिए फंड्स जो है वो इकट्ठे किए जा रहे हैं। लेकिन हमने देखा कि कुछ सरकारी मशीनरी हमें वहां पर ज्यादा एक्टिव दिखाई नहीं दी, लेकिन पाक फौज जो है वो हमेशा की तरह, जिस तरह हमने देखा कि कोई भी नागानी आफत होती है तो पाक फौज जो है वो अव्वल दस्ते का किरदार अदा करती है। आज भी हमें पाक फौज के जो जवान हैं वो मुख्तलिफ मुकामात पर, मुख्तलिफ शाहराहों पर, मुख्तलिफ सड़कों पर और जो सैलाब ज़दा और आफत ज़दा जो इलाके हैं वहाँ पर हमें अव्वल दस्ते का किरदार अदा करते हुए नजर आई है। पाक आर्मी की जानिब से फ्लड रिलीफ कैंप जो है वो कायम किया गया है, मेडिकल कैंप जो है वो कायम किया गया है और उसके बाद से आज के दिन में जो 11 लाशें हैं उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया है। और एक चीज और बताइएगा, आप क्योंकि ग्राउंड से रिपोर्ट कर रहे हैं, आफत ज़दा ये इलाका है, वहाँ लोगों की सिचुएशन है क्या, उनकी फीलिंग्स क्या है, वो किस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं, क्या मामला है, उसको रिपोर्ट कीजिएगा। दूसरा ये बताइएगा, हम ये सुन रहे हैं कि 22 तक ये अभी भी खतरा मौजूद है, तो उसके बारे में NDMA या दीगर अथॉरिटीज ने वहाँ किस तरह के प्रिकॉशंस और लोगों को हिदायत की है? देखिए जी, सूबाई हुकूमत की जानिब से हमें कोई इन आफतज़दा इलाकों के अंदर कोई खातिर खा इंतजाम जो वो नहीं दिखाई दिए। तमाम जिम्मेदारी जो है वो मुकामी NGOs पर डाली गई है और NGOs हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर मुतहरिक भी थी। वफाकी हुकूमत के नोटिस के बाद वहाँ पर पाक फौज के दस्तों को तैनात किया गया। वफाकी हुकूमत के नोटिस के बाद वहाँ पर मशीनरी जो है वो हरकत में आई। जो मुकामी लोग हैं वो वहाँ पर हमें बेबसी की तस्वीर बने दिखाई दिए। उनके घरों के अंदर, उनकी दुकानों के अंदर, इमारतों के अंदर, मसाजिद के अंदर, दरबारों के अंदर हमें तकरीबन 8 से 10 फीट तक हमें रेत और मट्टी जो बरसाती रेले में आई है वो नजर आई है। बड़े बड़े पत्थर जो हैं जिनके सामने मुझे अपना कद जो है वो छोटा नजर आ रहा था, इतने बड़े पत्थर जो वो रोल होते हुए दुकानों के अंदर दाखिल हुए, शटर उनके टूट गए, दुकानें जो है वो लेकिन मुझे एक बात बताना, जो बरसाती उस्मान मुझे एक बात बताना, क्योंकि ये जो भी नई बहस छिड़ गई है उसके हवाले से ये बहुत इम्पोर्टेंट है। वहाँ क्या मुस्तकिल बारिश हो रही है, मुस्तकिल बारिश हुई, या लेट्स से कि आधे पौने घंटे की बारिश हुई और जनरली क्लाउड यानी बर्स्ट ही हुआ? क्या आपको इत्तला मिली है वहां पे लोगों से बात करके? ये मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। वक्फे से जो हाँ, हेलो जी देखिए, चूंकि वक्फे से जो बारिशों का सिलसिला था वो आज भी आज जो है भी वो यहाँ पर जारी रहा और हमने देखा कि कोई फ्लड रिलीफ कैंप इससे पहले जो वो कायम नहीं किया गया था। पाक फौज के दस्ते जो वो काफी मुतहरिक रहे हैं और इस हवाले से चूंकि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से ये बताया गया था कि बलाई इलाका जात जो है वो शदीद खतरे की लपेट में है। हमने देखा कि पीर बाबा का जो दरबार है उस दरबार से मुल्हिका जो बरसाती नाला है, जिस बरसाती नाले में बड़े पैमाने पर जो है वो तबाही मचाई है। तकरीबन 300 के करीब दरख्त जो हैं वो जड़ों से उखड़ कर जो है वो लोगों के घरों में जाकर गिरे हैं और करीब ही जो बच्चों के लिए एक प्ले ग्राउंड बनाया गया था जहां पर बड़े झूले जो है वो नस्ब किए गए थे, वो देखते ही देखते वो झूले जो है वो इस पानी की नजर हुए। लेकिन जो अब भी पेशन गोई की गई है कि 22 अगस्त तक बारिशों का ये सिलसिला जारी रहेगा। अब तक जो मुतासरीन है ना उन्हें अमदाद फराम की जा सकी है और ना उन्हें अब भी महफूज मुकाम पर मुंतकिल नहीं किया जा सका। नहीं तो यहाँ पे कोई खास बीमारियां, ये मार्बल नहीं, ये बताओ कि यहाँ पर जो है फिर तो बहुत सारी यानी कुदरती बीमारियां भी फैल सकती हैं अगर प्रॉपर जो है। क्या मेडिकल टीम्स आपको नजर आ रही हैं मुतहरिक मैदान में, खा NGOs की सही या पाक फौज की तरफ से ही सही? जी देखिए, आज जो है वो मेडिकल कैंप जो है वो आज ही कायम किए गए हैं और वहां पर भी हमने देखा कि बड़ी तादाद में लोग जो है वो आ रहे थे। वहां से जो अद्वियात हैं वो उनको फराम की जा रही थी। चूंकि इस सारी सूरत हाल के अंदर जो वबाई अमराज हैं वो भी फैलने का खदशा है। जो डेड बॉडीज जो वो अस्पताल मुंतकिल की गई हैं वो बिल्कुल मस्क हो चुकी थी, चेहरे जो वो शनाख्त के काबिल नहीं थे और उनके जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा जो हैं उन पर जो निशानात हैं जख्मों के वो मौजूद थे
उन्हें जिन कपड़ों में लपेट कर लाया गया वहां पर जो है वो काफी ज्यादा मुश्किल था वहां खड़े होना भी। और हमने देखा कि वहां पर जो मर्दान है, मर्दान से भी टीमें वहां पर जो है वो पहुंचाई गई थी और उनकी शनाख्त का अमल जो है वो आज से शुरू कर दिया गया है। चूंकि बड़े पैमाने पर ये तबाही हुई है, सबसे ज्यादा हमने देखा कि शहरियों के साथ साथ जो ताजर बरादरी है वो काफी ज्यादा बेबसी की तस्वीर बनी हुई नजर आई है, क्योंकि ये इलाका जो है वो मार्बल के हवाले से काफी ज्यादा जो वो फेमस है। अच्छा, और यहाँ का जो मार्बल है उस्मान, पूरे पाकिस्तान के अंदर जी बोल कंप्लीट कर लें जरा जल्दी से प्लीज। जी, मार्बल के हवाले से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है मार्बल के ताजरों का, आप ये कह रहे हैं कि इट इज। देखिए, चूंकि मार्बल जो यहाँ का है वो काफी फेमस भी है, पूरे मुल्क में वो भिजवाया भी जाता है। यहाँ पर जो पहाड़ों की कटाई की गई है, जो क्रशिंग की गई है, जो ब्लास्टिंग की गई है, वो एक बड़ी वजह है कि इतना बड़ा बरसाती रेला जो है वो यहाँ पर दाखिल हुआ। मुकामी अफराद से मेरी बात हुई तो उनका ये कहना था कि इस तरह का एक तूफान जो है वो बुनेर के अंदर 1990 में आया था और उसके बाद आज हमने देखा कि इतना बड़ा तूफान जो है आया जिसमें बड़े पैमाने पर जो वो तबाही मचाई है। और तकरीबन अब तक 42 के करीब जो बच्चे हैं उन्हें जिंदा बचाया गया है। 20 खवातीन ऐसी हैं जिन्हें जिंदा बचाया गया है, लेकिन बाकी जो लोग हैं 2 खानदान ऐसी हैं जिनमें एक ही खानदान के 40 लोग हैं और एक खानदान के 27 लोग हैं जो इस बरसाती रेले की नजर हुए हैं। अच्छा, दो चीजें, एक तो ये जो आपने क्लाइमेट चेंज के हवाले से एक बात की है कि दरख्त पहाड़ों की कटाई, और ऑफ कोर्स अगर पहाड़ों से पत्थर निकाला गया है तो वहां दरख्तों की भी कटाई हुई होगी, तो ये क्लाइमेट चेंज के बड़े फैक्टर्स गिनवाए गए। एक तो मुसलसल क्रशिंग, माउंटेन्स का तोड़ना और दरख्तों की कटाई। आप ये कह रहे हैं कि ये लोगों ने वहां के लोकल्स ने ये आपको बताया? जी बिल्कुल, क्योंकि हमने देखा कि बड़े पैमाने पर यहाँ पर पहाड़ों की जो कटाई है वो की गई है, जिसकी वजह से जो पानी का भाव था वो पहले से कई गुना ज्यादा था, क्योंकि ये पानी जो है ये पहाड़ों से होता हुआ जो रिहायशी आबादी है उसके अंदर जो है वो दाखिल हुआ है। बड़े पैमाने पर यहाँ पर दरख्त जो है वो काटे गए हैं, लेकिन मैंने आज तक जितने भी सैलाब ज़दा इलाकों से रिपोर्ट किया उसमें एक वजह हमेशा से मुझे नजर आई है कि जो भी बरसाती नाला है, बरसाती नाले के ऊपर जो तामीरात और जो तजावुजात की गई है उसकी वजह से नाले की जो चौड़ाई है वो कम होने की वजह से जो रिहायशी आबादियां वो बड़े पैमाने पर जो वो इसकी ज़्यादा में आई हैं। एक ही मार्केट से 7 लाशें निकालकर जो वो अस्पताल मुंतकिल की गई हैं। ये लाशें जो है ये वर्कर क्लास लोगों की थी, जो लेबर थी, ये उनकी लाशें थी। चूंकि इतने बड़े पैमाने पर ये सैलाब आया कि लोगों को संभलने का मौका नहीं मिल सका। जो लोग